خیر مقدم ہے۔ کشمیر میں آج حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا اور اس دوران خانقاہ مولا سری نگر میں عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں حاضری دی۔ اس دوران شاہ ہمدان کی دینی اور معاشرتی خدمات پر علماء دین نے روشنی ڈالی۔ علماء نے شاہ ہمدان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس دوران ان کی دینی خدمات کے علاوہ کشمیری عوام کو دستکاری اور دیگر فنون سکھانے کے ان کے کردار کو اجاگر کیا گیا۔ حضرت شاہ ہمدان کا جو فیض ہے کشمیر اور اہلیان کشمیر پہ، وہ آج جلوہ گر ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کتنی عقیدت آپ سے ہے، اور آج اگر زندہ دین ہے یہاں پہ، وہ فیوض اور برکات کا نتیجہ ہے جو شاہ ہمدان نے یہاں دین لے کے آئے اور اسلام سے ہمیں متعارف کروایا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس سال بہت اچھی طرح سے عرس مبارک منایا گیا، اور 6 دن مولود شریف بھی ہوا کہ مجلس ہوا کرتی تھی اور ختمات بھی ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں امن لائے، خوشحالی لائے، ہر مذہب سے وابستہ انسان کو، لفظ انسان، ہر ایک کو سلامتی عطا فرمائے، اور کشمیر میں امن اور آشنی ہو، اور ان کا سایہ ہم پر قائم ہو۔ ترال میں آج حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، اور اس سلسلے میں رات بھر شب خوانی اور نعت و مناجات کی محفلیں آراستہ ہوئیں۔ وادی کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے خانقاہ فیض پناہ میں حاضری دی۔ اس موقع پر علماء نے حضرت امیر کبیر کی زندگی اور دینی خدمات پر روشنی ڈالی۔ 3 مرتبہ تبرکات کی نشاندہی کرائی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے تبرکات کا دیدار کیا۔ سب ضلع انتظامیہ، پولیس، دیگر محکموں نے عرس کے موقع پر تمام انتظامات کیے تھے۔ خوشی اللہ تعالیٰ کن شکرانہ کران، تقریباً 3 وہر بعد آج عرس مبارکس من شرکت کران، بڑ خوشی سان مسرت سان محبت و پرچار حضرت سید میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ یت وادی کشمیرس مز یہ پیغام یوت واتنو محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بے دین اسلام و پیغام، چونکہ اولین پیغام حضرت شاہ ہمدان سند اخوت، بھائی چارگی، ملن ساری، سخاوت پرچار یس شاہ ہمدان دیت، اور تت ست ذریعہ معیشت یم زن تم مطلب باقی فنکار یور فن ہت آئے، ذرائع اسباب تہ کرک اس حوالہ، تت مز عالم معروف زیادہ پہن قالین باب اس یہ پیپر ماشی وغیرہ وغیرہ واریاہ یم چیز ساری دین ہت، دینس ست دتک دنیا تربیت تہ کت پٲٹھۍ گژھِ حلال کمٲے ہُنٛد پنُن نفس پکناوُن، حرام خوری نش گژھِ پتھ روزُن، یہوے پیغام جو حضرت شاہ ہمدان سُنٛد اتھ سۭتۍ سۭتۍ دین اسلامٕچ پیروی تہٕ مطابات کرن جناب حضرت رسول رحمتن ہٕنٛز صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈی ڈی سی ممبر ڈاڑسرا اوتار سنگھ نے حضرت امیر کبیر کے آستان عالیہ ترال میں حاضری دے کر عرس میں شرکت کی۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت امیر کبیر نے جو بھائی چارے کا پیغام ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ترال میں جو بھائی چارہ قائم ہے یہ امیر کبیر کا ہی پیغام ہے۔ انہوں نے زائرین میں جوس بھی تقسیم کیا۔ حضرت امیر کبیر صاحب کی دعاؤں کے بدولت یہاں کا بھائی چارہ کتنے بھی حالات خراب ہوئے وہ بنا رہا، اور ہم آگے بھی مطمئن ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ان حالات کو، اس آپسی بھائی چارے کو بنانے کے لیے یہاں کا سکھ مسلمان پنڈت مل جل کے کام کریں گے اور اس گہوارے کو بنا کے رکھیں گے۔ ضلع پونچھ منڈی تحصیل میں LOC پر واقع گاؤں گنٹر میں رحمت اللہ پیر زہرات صادق شاہ کا 2 روزہ عرس بڑی ہی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ضلع کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں سے آئے لوگوں نے بلا امتیاز مذہب و ملت عرس میں شرکت کی اور من کی مرادیں مانگی۔ آج دوسرے روز علماء نے اس زیارت پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ آج حضرت سید پیر صدیق شاہ صاحب کا 2 روزہ عرس مبارک چل رہا ہے۔ ساوجیاں گھنٹڑ کے مقام پہ یہ زیارت ہے۔ یہاں ڈسٹرکٹ کے علاوہ بھی باہر سے لوگ آتے ہیں، زائرین اپنے مرادیں حاصل کرنے کے لیے، بغیر رنگ و نسب، بغیر مذہب و ملت، ہر مذاہب کے لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ نامور علماء اہل سنت ڈسٹرکٹ پونچھ کے جو ہے انہوں نے شان اولیاء کرام پر خطاب فرمایا، اور یہاں پر لوگوں نے جوگ در جوگ کثیر تعداد میں درگاہ حضرت
सैयद सिद्दीक शाह रहमतुल्लाह पर हाजिरी दी और अकीदत के फूल निछावर किए और दुआएं पूरे आलम इस्लाम के लिए। वराज अदबी संगम की जानिब से टाउन हॉल अनताक में महफिल मुशायरा और किताबों की रस्मी इजराई की एक तकरीब मुनक्किद हुई। इजहार मुबश्शिर और यूसुफ जहांगीर की तसनीफ करदा 3 किताबों की रस्मी इजराई अंजाम दी गई। साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता शायर, अदीब और कलमकार गुलाम नबी आतिश के अलावा वादी के कई सरकर्दा उदबा, शोरा, कलमकारों ने शिरकत की। कश्मीरी ज़बान को तक़वियत बख्शने के हवाले से मुतल्लिक़ीन के रोल और अदम तवज्जुही पर भी तबादले ख्याल किया गया। लीगेसी पैदा करें, आने वाली नस्लों के लिए लिखें, पढ़ने वालों के लिए लिखें और इन किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। इस रिलीज़ फंक्शन का मकसद तो यही है कि 100-200 लोगों को जमा किया जाए, उन्हें इन किताबों के बारे में बताया जाए, बात की जाए, उन्हें सेंसिटाइज़ किया जाए ताकि वो पढ़ें, खुद पढ़ें, लोगों को पढ़ाएं। और हमारा जो अदब है, चाहे कश्मीरी अदब हो, उर्दू अदब हो, हम इसमें दो राय नहीं करते हैं। ये एक कदीम ज़बान है, लेकिन तारीख़ में ऐसे मौके आए हैं या यूँ कहा जाए कि कभी इस ज़बान को सरकारी सरपरस्ती ना मिली, लेकिन उसके बावजूद इस ज़बान ने बहुत अहम तरीन शुरा पैदा किए, अदीब पैदा किए। ललदेद और चासर एक ही ज़माने के शायर हैं, वो भी कहते हैं हमारा इब्तिदाई शायर। हमारा ये है कि ललदेद इब्तिदाई शायरा नहीं है, बल्कि एक अदबी दौर की एक महराज उसे कहेंगे। तो इस एतबार से बहुत कदीमी ज़बान है, लेकिन आज ही की बात नहीं, कश्मीरी ज़बान डिज़र्व करती है क्लासिकी दर्जा होना चाहिए इस ज़बान को, जो अभी तक इस ज़बान को नहीं मिलता है। मैंने कोशिश की बच्चों की नफ्सियात से वाकिफ़ हो जाऊं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ की तरफ वो माइल हो जाते हैं। तो मैंने उनके लिए कुछ अफसाने तहरीर किए हैं, तो जो इस किताब में शाया हुए हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों को वो पसंद आ जाए। इसके अलावा यूसुफ जहांगीर साहब की 2 किताबें हैं। एक उनका पहला शायरी मजमूआ है व्यथपुर धारतिज। यूसुफ जहांगीर बहुत अजीम, बहुत बड़े शायर हैं। हाल ही में आए सैलाब की वजह से पारीपुरा मखामा मागाम में नाले सुखनाग पर पुल को शदीद नुकसान पहुंचा था। महकमे R&B ने इसे लोगों के चलने के लिए गैर महफूज करार दिया था, तब उसे बंद भी कर दिया गया था। लोगों का कहना है कि LG और चीफ इंजीनियर की यकीन दहानी के बावजूद आज तक मुतल्लिका महकमे का कोई अफसर यहां जायजा लेने के लिए नहीं आया। मखामा और पारेपुरा के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आज रात नामालूम अफराद ने इस पुल से लगाई तारें हटा दी। इसके बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हुई, लेकिन इस पुल पर चलना जानलेवा साबित हो सकता है। राब्ता है इस तहसील बीरवा को, तहसील बड़गाम और तहसील खान साहब को। तकरीबन बड़गाम के तमाम इस तहसील हैं, इसके साथ राब्ता किया करते हैं। हम गवर्नर का दौरा था, यहाँ रड़बुग आए थे, हम वहाँ गए, हमने वहाँ अप्लाई किया, उसके साथ बहुत बात की, उसने तमाम बातें खुद सुने और कहा कोई परेशानी हम आपको ये बनवा के देंगे। मगर उन्हें हमारे इस पर कोई तवज्जो नहीं। और इस चीफ ने कहा 3 बार कहा कि आज कल यहाँ आएगी हमारी टीम, मगर कोई आज तक टीम ना आई। रात को आए, उन्होंने एंगलर उठाए हैं और यहाँ आज चल रहे हैं लोग, यहाँ को पुल पे चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं है जिस तक भी एक्सीडेंट हो जाएगा, इसमें ये अनसेफ है। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी टीम अभी वहाँ पहुंचे। हमने को कहा था फॉर पेडेस्ट्रियन यूज, हम इसको अभी खोल रहे हैं जी। तो बाकी इसमें जो भी नेसेसरी मेजर्स होंगे वो हम ले लेंगे। हमारी टीम आज आने वाली थी, शायद बिकॉज ऑफ रेन्स वो नहीं आ पाई, या हो सकता है अभी आ भी जाए जी। तो मैं खुद अभी आके देख लूंगा। म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा की जानिब से सर्कुलर रोड पर वुमेंस कॉलेज के नजदीक डंपिंग साइट होने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। कज़े पुलवामा से निकलने वाला सारा कूड़ा करकट इसी जगह पर जमा किया जाता है। पुलवामा जिला हेडक्वार्टर और शोपियां जाने वाले मुसाफिरों को पुलवामा कस्बे में दाखिल होने से कबल म्युनिसिपल कमेटी के इस कूड़ेदान को देखना पड़ता है। दुकानदारों के साथ साथ वुमेंस कॉलेज की तालिबात को भी काफी परेशानी हो रही है। काउंसिल ने 3 साल कबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मंसूबा बनाया था, मगर आज तक उस पर अमल नहीं हुआ है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी मुस्तकिल न होने भी मुश्किलात का सामना है।
डंपिंग साइट के पीछे एक वुमेन्स डिग्री कॉलेज है, उसमें लगभग 1500-2000 के करीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं। जो भी यहाँ से गुज़रता है वो 2 मिनट के लिए ये स्मेल टॉलरेट नहीं कर पाता है। हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की थी कि इस चीज़ को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये पुलवामा का एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करती है। अब हमें उम्मीद है जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब बसीरुल हक चौधरी साहब बड़े होनहार और काम करने वाले डीसी साहब है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसकी प्रेजेंस में ये डंपिंग साइट शिफ्ट होनी चाहिए। कहीं तवज्जो दिवान अत हून दोहस नचा कहीं कर खेक तह दपा वो क्या छक्यूस ना तक दपा मिल त्रोहिस पे तपन यस तीक वो कत परेशान डांगरपोर पे गसान योकनस शुपियंस रोड्स कुन ये थो कि डंपिंग साइड ये क्या वन पुरसानी यपर गाड़ी वोल पकान आम लोग पकान बनान पकन फक गांद ये यपर गाड़ी वोल थमा बेचार दूर 1 किलोमीटर थोक। एजी मनोज सिन्हा ने माजूरों को माशी तौर से बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया। श्रीनगर में उन्होंने कुछ लोगों में मोटरसाइकिलें तकसीम की। उन्होंने बताया कि मंसूबे के मुताबिक 4000 ट्राइसिकलें माजूर अफराद में तकसीम की जाएंगी। पहले मरहले में ऐसी 1000 गाड़ियां बांटी जाएंगी। ऐसी बाकी 3000 मोटरसाइकिलें बाद में माजूरों को दस्तियाब कराई जाएंगी। गाड़ियों की तकसीम के बाद एलजी ने चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुक्काम के साथ मीटिंग की। जम्मू कश्मीर में माजूर लोगों की माशी आज़ादी के लिए एक स्कीम की जरूरत पर जोर दिया। जिनको हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से लाभ दे रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमें कोई न कोई योजना बनानी चाहिए। चाहे खास तौर से दिव्यांग भाई बहन अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए एक प्रोग्राम हमको जरूर चलाना चाहिए और आर्थिक रूप से उनकी मदद करके अगर उन्हें हम आत्मनिर्भर बना सकेंगे तो हमको लगता है कि जो प्रयास चल रहा है उस प्रयास को और मजबूती। बारामूला में डीसी डॉक्टर सहरिश असगर ने 80 स्कूटियां जिस्मानी तौर से नाखेज अफराद में तकसीम की। डीसी ने इन इस्तिफादा कुनंदगान से बातचीत भी की। डीसी ने माजूरों के मसाइल को दूर करने की मुतल्लिकीन को हिदायत दी और इन माजूरीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मजीद इक़दामात करने पर जोर दिया। डीसी ने माजूरों को यकीन दिलाया कि जिला इंतजामिया उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। इनके जो बाकी इश्यूज़ हैं डिसेबल्ड लोगों के, स्पेशली एबल्ड लोगों के, उनको भी डिस्कस किया गया और उनकी एसोसिएशंस जो हैं उनके साथ भी बात की गई और ये देखा गया कि जो इनको इश्यूज़ आ रहे हैं उनको हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसको भी नोट किया गया और उनको भी बताया गया कि किस तरह से ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ JNK, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, चाहे वो मिशन यूथ में हो या बाकी हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कंसर्निंग स्कीम्स हों, उसके बारे में भी इनको इन्फॉर्मेशन दी गई और हमें भी एक प्रॉपर फीडबैक मिला कि कितनी ज़रूरी है इनके साथ एक रेगुलर मीटिंग्स वगैरह करना। जिला कुपवाड़ा में जगरपुरा गांव के इकबाल रसूल डार ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अपनी जगह बना ली है। इकबाल डार ने लगातार दूसरी मरतबा इम्तहान में अपनी जगह बनाई। गुज़िश्ता साल इकबाल ने इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इकबाल की चाहत है कि वो IAS में अपनी जगह बनाए। उन्होंने IFS में कामयाबी हासिल की है। महकमा जंगलात ने आज इकबाल के एजाज में नगरवारी इको पार्क में एक तकरीब का इनेकाद किया था। लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। जो एस्पिरेंट से जो ख्वाहिश रखते हैं कि वो भी इंडियन सर्विस में जाएं, जो तैयारी में है लड़के या जो मेहनत करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम होगा कि उन्हें किस तरह की मेहनत करनी होगी? सबसे पहले मेहनत, दूसरी इंटेलिजेंट हार्डवर्क। इंटेलिजेंट माने कि डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम जो है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो आपका मन करे वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। और वो जो है फोकस्ड रहना है, कम से जो बुक्स रखो और उनको बार बार पढ़ो। बहुत सारी बुक्स पढ़ के उनको 1 या 2 बार पढ़ना ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, नोट मेकिंग जो है अपना आर्ट बनाओ आप। तो ये नोट मेकिंग, फोकस्ड, इंटेलिजेंट, हार्डवर्क जो है 3 अगर आप साथ में ले चलोगे विद कंसिस्टेंसी, क्योंकि इसमें 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 2 से 3 साल दे दो इसमें अपने बहुत अच्छे से, तो कामयाबी कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। इस इम्तिहान में कश्मीर से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ उस तरीके से। तो जब हमने आपकी बात सुनी कि आपने क्रैक किया है, वजह क्या हो सकती है कि इस बार लड़के ये इम्तिहान पास नहीं कर पा सके? जी कोविड का भी असर हुआ होगा। दूसरा है कि केएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है कभी कभार क्लैश करता है यूपीएससी के साथ, तो उस चक्कर में क्या होता है वो प्रॉपर एनर्जी नहीं दे पाते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो वो भी जो प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका उस चक्कर में। थर्ड इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, शेयर लक, कभी कभार एक आध क्वेश्चन किसी को कोविड हो गया,
कुछ और हो गया, तो दैट मेड एन इम्पैक्ट। महकमे के हवाले से भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कल कंजर्वेटर साहब से बात हुई, DFO साहब से बात हुई, वो बहुत खुश थे, वो खुद भी आना चाहते थे इनके वेलकम के लिए। तो हमने सोचा क्योंकि नगरी वादी का जो यहाँ पे हमने इनिशिएटिव लिया है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट के हवाले से, इको टूरिज्म के हवाले से, तो हमने सोचा कि पहले तो हम इनको यहाँ पे मुबारकबादी के लिए बुलाएं ताकि ये एक मैसेज चले जाए पूरे जिला को। जिला कठवा की नगरी पुलिस चौकी के हदूद में आने वाले गांव सईदपुरा में एक 10 साल के बच्चे का बेरहमी से कत्ल किया गया। प्रणय गुप्ता के कत्ल के बाद उसके अफराद खाना, रिश्तेदारों और गांव वालों ने मुलजिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। महलू के वालिद ने बताया कि उनके गांव के ही लोगों ने उनके बेटे का कत्ल किया है और उनको जल्द पकड़कर सजा दी जाए। SSP कठवा ने बताया कि इतला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। मर्डर किया है और साथ में जिस हालात में वो बॉडी मिली हुई है ना, वो देखने के लायक बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली एक तो उनके हाथ बांधे हुए थे, जो बॉडी है, एक पाँव बांधे हुए थे और साथ में पूरी टेप कवर की हुई थी फेस में, और साथ में बॉडी जो प्रेस करके एक पॉलीथीन में डाली हुई थी। मुंह पे टेप लगी हुई थी, मुंह बंधा हुआ था, उसके पैर बंधे हुए थे और बच्चे की बॉडी पे छोटे मार्क्स भी हैं। ऐसा लगता है कि उसने स्ट्रगल भी की है और बहुत ही हीनियस क्राइम है। और अब हम चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए और पूरी चीज़ें जो हैं वो परत दर परत खुलें कि उसमें क्या मोटिव रहा था, क्यों उस बच्चे को वहाँ से घर से किडनैप किया गया, कैसे बच्चे को वहाँ पे झाड़ियों में लेके क्यों मारा गया, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने। जिला शोपियां में तारीखी मुगल रोड पर एक सड़क हादसे में 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिला अस्पताल शोपियां मुंतकिल करके उनका इलाज किया जा रहा है। राजौरी से शोपियां आ रही एक टाटा सुमो गाड़ी उलटकर एक नाले में जा गिरी। शोपियां के पदपावन के करीब मुगल रोड पर यह हादसा हुआ है। लोगों ने जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है।